In this video, we will discuss very important and basic chapter of macroeconomics, classical theory of employment. First is the introduction. Classical theory refers to an integrated thought of different classical economists like Adam Smith, David Ricardo, J.B. Say, Karl Marx, and neoclassical economists like Alfred Marshall and A.C. Pigou. Adam Smith was a British economist, philosopher, and author, moral philosopher, pioneer of political economy, also known as the father of economics or the father of capitalism. Smith wrote two classic works, The Theory of Moral Sentiments in 1759 and An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, also known as Wealth of Nations in short, in 1776. The Wealth of Nations is considered as the first modern work of economics. David Ricardo was a British political economist. His most famous book is Principles of Political Economy and Taxation, appeared in 1817. Jean-Baptiste Say was a liberal French economist and businessman who argued in favor of competition, free trade, and lifting restraints on business. He is best known for Say's law of markets, which states that supply creates its own demand. Karl Marx was a German philosopher, economist, historian, sociologist, political theorist, journalist, and socialist revolutionary. Due to his political publications, Marx became stateless and lived in exile with his wife and children in London for decades, where he continued to develop his thought in collaboration with German thinker Friedrich Engels and publish his writings, researching in the reading room of the British Museum. His best-known titles are the 1848 pamphlet, The Communist Manifesto, and the three-volume Das Kapital, 1867 to 1883. Alfred Marshall's book Principles of Economics 1890 was the dominant economics textbook in England for many years. It brings the ideas of supply and demand, marginal utility, and costs of production into a coherent whole. He is best known as one of the founders of neoclassical economics. Arthur Cecil Pigou was an English economist. As a teacher and builder of the School of Economics at the University of Cambridge, he trained and influenced many Cambridge economists who went on to take chairs of economics around the world. His work covered various fields of economics, particularly welfare economics,
but also included business cycle theory, unemployment, public finance, index numbers, and measurement of national output. तो जो क्लासिकल थ्योरी है, क्लासिकल थ्योरी किसी एक इकोनॉमिस्ट ने नहीं दी। जो भी वर्क मेनली 1936 में केन्स की बुक आने से पहले जो भी डिफरेंट लोगों ने काम किया इकोनॉमिक्स के ऊपर नेशनल लेवल के पे, जैसे एडम स्मिथ ने, रिकार्डो ने, से ने, मार्क्स ने, मार्शल ने, पिगू ने, तो जो भी लोग थे इनकी जो थॉट थी अनएम्प्लॉयमेंट को, एम्प्लॉयमेंट को, नेशनल आउटपुट को लेकर वो सिमिलर थॉट थी। इसलिए इन सभी के काम को इकट्ठा कर दिया और उसको बना दिया क्लासिकल थ्योरी। तो उन सब की थॉट का जो इंटीग्रेटेड पोर्शन है क्लासिकल थ्योरी। What is the main theme of classical theory of employment? Full employment is the normal feature of a capitalist economy. कोई भी जो कैपिटलिस्ट इकॉनमी है, कैपिटलिस्ट इकॉनमी मीन्स वेयर प्रोडक्शन इज इन प्राइवेट हैंड्स, नो regulations by the government, no interference by the government, and price is determined with the help of demand and supply. कैपिटलिस्ट इकॉनमी हम उसको बोलते हैं जहाँ गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल ना हो और जो प्राइसेस हैं वो मार्केट में डिसाइड होती हैं विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, गवर्नमेंट द्वारा फिक्स नहीं की जाती। इट इज़ आल्सो नोन एज फ्री एंटरप्राइज इकॉनमी, इसको फ्री एंटरप्राइज इकॉनमी भी कहते हैं। तो ऐसी इकॉनमी में जो फुल एम्प्लॉयमेंट है वो एक नॉर्मल फीचर है, मतलब होगा ही फॉर द लॉन्ग टाइम फुल एम्प्लॉयमेंट रहेगी। दिस इज द मेन थीम ऑफ क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो क्लासिकल ने फुल एम्प्लॉयमेंट किसको कहा है वो इन्होंने एक्सप्लेन किया है। डेफिनेशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट अकॉर्डिंग टू Lerner, Abba P. Lerner was a Russian-born British economist. According to Lerner, full employment is a situation. Full employment एक ऐसी situation को हम कहते हैं in which all those who are able and want to work, तो वो सभी लोग जो काम करने के योग्य हैं और जो काम करना चाहते हैं एट द एग्जिस्टिंग रेट ऑफ वेज गेट वर्क विदाउट एनी अनड्यू डिफिकल्टी। तो मार्केट में जो भी काम अवेलेबल है, जिस वेज रेट पे काम अवेलेबल है, उस काम को करने के लिए अगर वर्कर विलिंग है और वर्कर को काम मिल रहा है, गेट वर्क, तो उसको हम कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने फुल एम्प्लॉयमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए ये बताया है कि फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशंस में भी कुछ अनएम्प्लॉयमेंट्स हो सकती हैं। दीज आर द टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एसोसिएटेड विद फुल एम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग अगर हम समझें तो 100% पॉपुलेशन को हम फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं कहते। जैसे सपोज पॉपुलेशन हो 100, इंडिया की अगर हम लगा लें तो इट इज़ 131 करोड़ सपोज। तो इसमें से अगर हम इस पॉपुलेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करें, 0 to 15 years of age, 15 to 60 years of age, and 60 plus, तो ये जो है ये है चिल्ड्रन, ये है ओल्डर पीपल, और दिस पोर्शन इज नोन एज द वर्किंग पॉपुलेशन। तो इस वर्किंग पॉपुलेशन में जितने भी लोग हैं
सपोज 131 करोड़ में से इस ग्रुप में सपोज 50 करोड़ लोग हैं, तो वो जो 50 करोड़ लोग हैं उन सभी को काम मिले, पर इस 50 करोड़ में भी कुछ लोग अनएम्प्लॉयड हो सकते हैं, जो इन्होंने यहाँ कहा। इवन इन अ सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट देयर मे बी सम टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में भी अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है, जिसको हम कहते हैं नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये कौन कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट हैं जो हो सकती हैं? फर्स्ट है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अकॉर्डिंग टू गार्डनर, John Gardner is Associate Professor of Economics at the University of Mississippi, USA. According to Gardner, frictional unemployment is the unemployment associated with the changing of jobs in a dynamic economy. तो डायनामिक इकॉनमी है, इकॉनमी चेंज होती रहती है, उसमें पॉपुलेशन चेंज होती रहती है, प्रोडक्शन की प्रोसेस चेंज होती रहती है, प्रोडक्ट्स चेंज होते रहते हैं, रूरल अर्बनाइजेशन चेंज होती रहती है, एज कॉम्पोजिशन लोगों का चेंज होता रहता है। तो ऐसी इकॉनमी में जब लोग जॉब्स को चेंज करते हैं, तो चेंज करने के टाइम जो अनएम्प्लॉयमेंट आती है उसको कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। दिस अनएम्प्लॉयमेंट इज टेम्पररी एंड फॉर शॉर्ट पीरियड, मेनली ड्यू टू इमोबिलिटी ऑफ लेबर, या तो लेबर इमोबाइल है कि यहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पे काम अवेलेबल नहीं है। सपोज यहाँ से दूर 200 किलोमीटर पे, 500 किलोमीटर पे काम अवेलेबल है, बट यू डोंट वांट टू गो देयर, आप वहाँ जाना नहीं चाहते, इसलिए आप अनएम्प्लॉयड हो। तो वो अनएम्प्लॉयमेंट को हम अनएम्प्लॉयमेंट नहीं मानते, उसको भी हम फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन ही मानते हैं। या फिर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है कि जॉब कहाँ अवेलेबल है, जॉब अवेलेबल है बट आपको पता नहीं कि जॉब कहाँ पर अवेलेबल है, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है जब तक आपको जॉब का पता नहीं चलता। या फिर टेंडेंसी है लोगों में टू चेंज देयर जॉब्स ऑफन। तो लोग जब जॉब चेंज करते हैं, आपने पुरानी जॉब छोड़ी, अब आप नई जॉब सर्च कर रहे हो, तो जितना भी टाइम आपको नई जॉब सर्च करने को लगा उस टाइम आप अनएम्प्लॉयड हो, दैट इज़ द फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो नई जॉब सर्च करने में जो टाइम है वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है। या फिर रॉ मटेरियल की शॉर्टेज है, पावर की शॉर्टेज है, या मशीनरी का ख़राब होना है, तो इन समय पे, इस टाइम पे अगर कोई थोड़ी बहुत टाइम हम अनएम्प्लॉयड हो गए तो उसको हम अनएम्प्लॉयमेंट नहीं मानते, उसको भी हम फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन ही कंसिडर करते हैं। तो इन 50 करोड़ में से फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती हैं लोग, जैसे हमने अभी पढ़ा, एंड देयर में बी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है। अकॉर्डिंग टू गार्डनर, structural unemployment is the unemployment that results from the long-term decline of certain industries. तो जब लॉन्ग टर्म कोई इंडस्ट्रियल चेंज आती है, कोई नई इंडस्ट्रीज ग्रो होती हैं, पुरानी इंडस्ट्रीज कम होती हैं, तो उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। इट अराइजेस व्हेन अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक लैंड, कैपिटल आर इन शॉर्ट सप्लाई। तो जब ये चीज़ें ना अवेलेबल हों तो लोग फ्री हो गए, जैसे पीछे से हम कहते हैं कि इनपुट्स नहीं आए, कैपिटल नहीं अवेलेबल, लैंड नहीं अवेलेबल। वर्कर्स आर नॉट ट्रेन्ड टू मैनेज मॉडर्न इंडस्ट्रीज। तो वर्कर्स ट्रेंड नहीं हैं, उनको नए स्किल नहीं आते, नई इंडस्ट्री में काम करना नहीं आता। जैसे ही वो नई इंडस्ट्री में काम करना सीखेंगे तो उनको काम मिल जाएगा। नेचर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड
इन द कंट्री इज चेंजिंग। तो गुड्स जो हैं वो चेंज हो रही हैं। पहले गुड और थी, अब गुड और आ गई है। तो नई गुड चेंज करने जब हम पैदा करते हैं, उसके लिए हमें नए टाइप के लोग चाहिए जो उसको पैदा कर सकें। तो अगर आप वो नई गुड प्रोड्यूस करने वाली टेक्नोलॉजी सीख लो, जैसे प्रोडक्शन टेक्निक भी तो चेंज हो जाती है, तो अगर आप नई टेक्नोलॉजी सीख लो तो आपको काम मिल जाएगा। तो जब तक आप नई टेक्नोलॉजी नहीं सीख रहे, आपको काम नहीं मिल रहा। तो दिस इज नोन एज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसको भी हम फुल एम्प्लॉयमेंट का ही हिस्सा मानेंगे अगर इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है। Similarly, there may be technical unemployment due to change in technique of production. There may be seasonal unemployment due to change in season, fashion, taste. तो जैसे एग्रीकल्चर में अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है, टूरिज्म इंडस्ट्री में अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है। तो जैसे ही कोई सीज़न चेंज हुआ, तो सीज़न जब आएगा, जैसे हार्वेस्टिंग सीज़न, सोइंग सीज़न इन केस ऑफ एग्रीकल्चर, तो उस टाइम लोगों को, लेबर को काम मिल जाता है। बट जब सीज़न नहीं होता तो वो फ्री होते हैं, तो उनको भी हम फुल एम्प्लॉयमेंट में ही मानते हैं। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। इट इज़ सिचुएशन व्हेन एम्प्लॉयमेंट इज़ अवेलेबल, काम अवेलेबल है, बट द वर्कर इज़ अनविलिंग टू वर्क एट द प्रिवेलिंग रेट ऑफ वेज। तो वर्कर काम करना ही नहीं चाहता, ऐसी सिचुएशन है जिसको हम कहते हैं वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। तो इस 50 करोड़ में से फ्रिक्शनल तौर पर लोग अनएम्प्लॉयड हो सकते हैं, स्ट्रक्चरल तौर पर अनएम्प्लॉयड हो सकते हैं, टेक्निकल तौर पर अनएम्प्लॉयड हो सकते हैं, सीजनल अनएम्प्लॉयड हो सकते हैं, या फिर अपने आप अपनी इच्छा से वो फ्री रुक सकते हैं। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट्स हो सकती हैं। इन 50 करोड़ में से अगर ये लोग अनएम्प्लॉयड हैं, सपोज ये 10 करोड़ लोग हैं, तो अगर हम इस 10 करोड़ को माइनस कर दें तो बाकी जो बचे, ये 10 करोड़ को अगर हम माइनस कर दें तो बाकी जो बचे 40 करोड़ लोग, ये वो लोग हैं जो प्रिवेलिंग मार्केट वेज रेट के ऊपर काम करना चाहते हैं और इनको काम मिल रहा है। दैट इज़ द सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। तो फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं कि सभी, पूरी की पूरी पॉपुलेशन को काम मिले। जो काम के एबल है और जो काम करना चाहता है उसको काम मिले, उसको कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन क्लासिकल थ्योरी। Now, assumptions of classical theory of employment: rational man who desires maximum satisfaction, तो जिसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी स्टडी करते हैं, कोई भी ऐसा इंसान जो अपनी इनकम को वेस्ट नहीं करना चाहता, उस सपोज हम ऐसे लोग हैं। तो इकोनॉमिक्स में इन्हीं लोगों की स्टडी की जाती है। मनी इज़ ओनली अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दैट इज़ मनी इज़ अ वेल। तो मनी एक वेल है, पर्दा है। इसका क्या मतलब है, मैं आपको जैसे एग्जांपल में समझाऊं। सपोज करो कोई फर्म है या कोई एग्रीकल्चर वाले हैं, फार्मर्स हैं। उन फार्मर्स ने सपोज राइस व्हीट पैदा कर लिए। फॉर एग्जांपल ये राइस व्हीट है सपोज। तो अब फार्मर क्या करेगा, ये एक पर्दा है, जो मनी है उसको हम कहते हैं मनी इज़ अ वेल, ये एक वेल है। तो फार्मर ने क्या किया, फार्मर अपने राइस को लेकर मार्केट में गया। मार्केट में उसने राइस को
सेल कर दिया। राइस को सेल करने के बाद उसने जो भी उसको कोई और कमोडिटी चाहिए थी, इंडस्ट्रियल गुड, सपोज उसको कंप्यूटर के लिए कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें चाहिए, इंडस्ट्रियल गुड्स चाहिए, तो वहाँ से वो जाकर मनी से ले आया। तो जब हमने देखा तो यहाँ राइस की जगह पर जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं वो थे। तो ये जो मनी है इसने एक वेल का काम किया, एक पर्दे का काम किया, और मनी का कोई काम नहीं है। मतलब जितने भी लोगों के पास पैसे हैं, इनकम लोगों ने अर्न की अपने बिजनेस से, वो उसको खर्चेंगे ही, क्योंकि मनी को सेव करने का कोई फंक्शन नहीं है। या तो लोग अपनी इनकम को देखो, लोगों की जो इनकम है या तो लोग उसको कंज्यूम करेंगे या उसको सेव करेंगे, और जितना भी वो सेव करेंगे वो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। लोग अपने पास कैश सेविंग नहीं रखेंगे क्लासिकल के अकॉर्डिंग, क्योंकि मनी का ऐसा कोई फंक्शन नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्राइसेस, वेजेस, इंटरेस्ट, प्राइसेस ऑल आर फ्लेक्सिबल। इसको हम बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो वेज रेट है, जो इंटरेस्ट है, वेज रेट लेबर की प्राइस है, इंटरेस्ट कैपिटल की प्राइस है, ये गुड्स प्राइसेस हैं, ये ऊपर नीचे हो सकती हैं। Equality between saving and investment, it is through rate of interest. According to classical theory, saving is the function of rate of interest. Investment is also the function of rate of interest. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ ही ये दोनों बराबर हो जाते हैं, क्योंकि अगर ये दोनों बराबर ना हो, इनमें इक्वलिटी ना हो, सेविंग के साथ, आर के साथ सेविंग पॉजिटिवली रिलेटेड है, इन्वेस्टमेंट नेगेटिवली रिलेटेड है। तो अगर कभी सेविंग और इन्वेस्टमेंट में इक्वलिटी ना हो, दोनों इक्वल ना हो, तो जो इंटरेस्ट रेट है वो अपने आप ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट फ्लेक्सिबल है। दोबारा फिर इनमें इक्वलिटी अपने आप आ जाएगी, जिसको क्लासिकल ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट भी कहते हैं। Other assumption is laissez-faire policy, that is no interference of government in economic activities. कोई गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं है, इकॉनमी ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम में रहती है बिकॉज ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्राइसेस, वेजेस, इंटरेस्ट। Classical assumes long run equilibrium at full employment can be maintained in the long run. तो अगर कोई प्रॉब्लम आ भी जाए इक्विलिब्रियम में, फुल एम्प्लॉयमेंट में, वो शॉर्ट पीरियड के लिए होगा। लॉन्ग पीरियड के लिए अपने आप ही जो वेजेस हैं वो ऐसे एडजस्ट होंगी जैसे लोगों को काम मिल जाएगा। क्लोज्ड इकॉनमी है, नो इफेक्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड या तो है नहीं, अगर है तो उसका बहुत ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं है। कांस्टेंट टेक्नोलॉजी, नो चेंज इन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस। सपोज जिस टाइम हम ये एनालिसिस कर रहे हैं उस टाइम की हम बात करते हैं कि सपोज एट द पॉइंट ऑफ टाइम टेक्नोलॉजी इज़ नॉट चेंजिंग। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न अप्लाई होता है, इसके बारे में हम माइक्रो में बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं कि जैसे जैसे हम इनपुट्स बढ़ाएंगे आउटपुट बढ़ेगा, बट आउटपुट में जो इंक्रीमेंट होगा वो पहले से कम होता जाएगा। सपोज देयर इज परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन है कमोडिटी मार्केट में, परफेक्ट कंपटीशन है लेबर मार्केट में। प्रोडक्ट मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन का मतलब है कि सपोज एक्स कोई प्रोडक्ट है, एक्स को सेलर, एक्स के बायर बहुत सारे हैं, सारे सेलर्स सिमिलर एक्स सेल करते हैं, तो होमोजीनियस एक्स है, प्रोडक्ट है। गवर्नमेंट की कोई इंटरफेरेंस नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, प्राइस सेम है। तो ऐसी कुछ अजम्पशंस होती हैं परफेक्ट कंपटीशन की। ऐसे ही जो लेबर मार्केट है उसमें भी परफेक्ट कंपटीशन है,
And last assumption is relation between money and real wage. Here it is direct relation and proportional relation. तो ये कुछ assumptions हैं classical economics की. Now we will explain the classical model. Classical model mainly क्या है? So it is explained with the help of equations and with the help of diagrams. First is output is the function of employment. According to classical economists, जो output है, suppose Q, it is the function of employment N. Q is the function of N, and law of diminishing returns applies. मतलब जैसे जैसे हम लेबर को बढ़ाएंगे जो आउटपुट है वो पहले से कम बढ़ेगा. जैसे हमने यहाँ पर ये डायग्राम बनाई है, ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स की डायग्राम है. हम इसको दोबारा ड्रॉ करके समझ लेते हैं. One side employment, other side output. ये है आउटपुट फंक्शन Q, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स. अब इसमें आप देखो, अगर हम इक्वल प्रोपोर्शन से इक्वल यूनिट्स लेबर की एम्प्लॉयमेंट की बढ़ाएं, सपोज 1 2 3 4 5, तो आउटपुट में जो इंक्रीज है, पहले जैसे है ये 1 या 10 लगा लो, फिर ये हुआ, पहले से ये कम हो गया, सपोज 18 हो गया, फिर और कम होगा. तो इसका जो एरो है ये इंक्रीज होने का, ये छोटा हो गया, सपोज 24 हो गया. अगर हम 4th यूनिट लगाएं तो ये और कम हो गया, सपोज 28 हो गया. और अगर हम 5th यूनिट लगाएं तो ये और कम हो गया, सपोज 30 हो गया. दिस इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, कि जैसे जैसे हम इनपुट्स बढ़ाएंगे जो आउटपुट है वो पहले ज़्यादा बढ़ेगा, सपोज 8, फिर उससे कम बढ़ेगा 6, फिर उससे कम बढ़ेगा 4, फिर उससे कम बढ़ेगा 2. मतलब आउटपुट इंक्रीज होगा 10, 18, 24, 28, 30, बट इसमें जो इंक्रीमेंट है 8, 6, 4, 2, वो इंक्रीमेंट कम होता जाएगा. और जब ये इंक्रीमेंट कम होता जाएगा तो नेचुरली आगे जाके कोई पॉइंट ऐसा भी आएगा जब ये नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये 8, 6, 4, 2 कम होता होता 0 हो जाएगा और फिर नेगेटिव भी हो सकता है. तो ये होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स. Second equation in classical model is the labor market equilibrium. Labor market, that is demand for labor and supply of labor, they are always equal, and the main equating force is the flexibility of wages. जो इसको इक्वल करने वाले हैं डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर को, वो है वेज रेट. क्योंकि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग जो वेज रेट है वो फ्लेक्सिबल है. एंड अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, डिमांड फॉर लेबर इज द फंक्शन ऑफ रियल वेज. तो ये है रियल वेज, मनी वेज अपॉन प्राइस. इनवर्सली रिलेटेड है, इन दोनों में इनवर्स रिलेशन है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है. एंड सप्लाई ऑफ लेबर इज पॉजिटिवली रिलेटेड, डायरेक्ट रिलेशन है इसमें सप्लाई ऑफ लेबर में. और इक्विलिब्रियम में दोनों बराबर रहते हैं, डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर.
क्लासिकल के अकॉर्डिंग ये हमेशा बराबर ही रहते हैं। इसी को हम फुल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, क्योंकि जितने लोग काम करने को तैयार हैं, जितनी लेबर की सप्लाई है, उतने ही लेबर की डिमांड है, तो इसी को फुल एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, इस वेज रेट के ऊपर W/P1 वेज रेट के ऊपर यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सेम ही है। वो यहाँ पर है, NF यहाँ पर है, ये N यहाँ पर है, O NF एंड दिस इज एक्सिस N। तो यहाँ पर क्या है, W/P1 वेज रेट के ऊपर ONF वर्कर अब लेबर की सप्लाई देने को तैयार हैं और ONF वर्कर्स की ही डिमांड है, इसलिए हम कह रहे हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट है। और अगर कभी इसमें इनइक्वालिटी हो, ना बराबर यहाँ पर हो यहाँ पर हो, तो वेज रेट फ्लेक्सिबल है, अपने आप ही ये चेंज हो जाएगी और अगेन फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन बन जाएगी। इसको भी हम दोबारा डायग्राम को ड्रॉ करके समझ लेते हैं। One side employment, other side real wage. Real wage means W/P. W is the money wage, price is the price of the commodity. अब इसमें क्या होता है, जैसे सपोज आपके पास जो मनी इनकम है वो मान लो 100 है। अब आप इसको जिस चीज़ के ऊपर स्पेंड करोगे उस चीज़ की जो प्राइस है वो सपोज करो 5 रुपीज़ है, तो आपकी जो रियल वेज होगी वो होगी मनी वेज ओवर प्राइस, दैट इज 100/5, दैट इज 20। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मनी वेज एंड रियल वेज? मनी वेज इज इन करेंसी टर्म्स, उस करेंसी की यूनिट में है, सपोज 100 रुपीज़। ये 20 जो है ये कमोडिटी टर्म्स में है। सपोज आपने पेन खरीदे, 5 रुपये का एक पेन है, तो दिस इज द 20 पेन्स। तो आपकी जो मनी वेज है दैट इज 100 रुपीज़, जो आपकी रियल वेज है दैट इज 20 पेन्स। तो ये कमोडिटी टर्म्स में होता है रियल वेज, ये करेंसी और मनी टर्म्स में होता है। और यू कैन से दिस इज मॉनेटरी वैल्यू, दिस इज रियल वैल्यू। सो ये रियल टर्म्स में है, ये मॉनेटरी टर्म्स में है। तो जो वेज रेट है वो रियल वेज रेट हमने यहाँ लगाई है W/P। तो क्लासिकल के अकॉर्डिंग जो डिमांड फॉर लेबर है वो नेगेटिव रिलेशन है रियल वेज के साथ, इसलिए हमने इसको डाउनवर्ड स्लोपिंग बनाया है। और जो सप्लाई ऑफ लेबर है उसका पॉजिटिव रिलेशन है रियल वेज के साथ, इसलिए हमने इसको पॉजिटिवली स्लोप्ड बनाया है। एंड ये इक्विलिब्रियम है, सपोज दिस इज पॉइंट E1, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट है सपोज, जिसको हमने लगाया NF। NF मीन्स फुल एम्प्लॉयमेंट। और ये वेज रेट जो है ये है W/P1 सपोज। हम यहाँ क्या कहना चाहते हैं कि W/P1 वेज रेट के ऊपर अगर हम देखें, तो अगर लेबर की डिमांड हम देखें ब्लैक लाइन, तो लेबर की डिमांड है 0 से लेके 3.5 तक, और लेबर की जो सप्लाई है वो भी है 0 से लेके 3.5 तक। तो जितनी लेबर की सप्लाई है उतनी ही लेबर की डिमांड है, इसीलिए हम कह रहे हैं ये फुल एम्प्लॉयमेंट है। एंड अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स, अगर सिचुएशन
कुछ ऐसी हो कि फुल एम्प्लॉयमेंट ना हो। सपोज यहाँ पर हो हम, सपोज W/P 2 पे हो, तो यहाँ पर अगर हम देखें जो लेबर की सप्लाई है वो है यहाँ से लेकर यहाँ तक। सपोज दिस इज B पॉइंट, और जो लेबर की डिमांड है वो है यहाँ से लेकर यहाँ तक। सपोज दिस इज A पॉइंट। तो W/P2 वेज रेट के ऊपर काम करने को लोग तैयार हैं यहाँ तक। अगर हम इसको नीचे ले आए, अगर हम यहाँ पे नंबर लगाएं, सपोज 200 लोग काम करने को तैयार हैं, बट जो डिमांड है वो सपोज 50 लोगों की है। तो सप्लाई तो है W/P2 वेज रेट के ऊपर 200 लोग काम करने को तैयार हैं, बट डिमांड सिर्फ 50 लोगों की है। तो ये सारे लोग अनएम्प्लॉयड हैं, इसको हम कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। तो क्लासिकल के अकॉर्डिंग ये अनएम्प्लॉयमेंट अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि लेबर की सप्लाई ज़्यादा है 200, डिमांड है 50। तो सप्लाई ज़्यादा होती है, जब हम माइक्रो में भी देखें तो सप्लाई ज़्यादा हो तो कमोडिटी की प्राइस कम हो जाएगी। यहाँ लेबर की सप्लाई ज़्यादा है, इसलिए जो लेबर की वेज है वो कम हो जाएगी। और जैसे ही लेबर की वेज कम होगी तो लेबर की वेज तब तक कम होगी जब तक ये दोनों बराबर नहीं होते। तो अगर हम यहाँ पर देखें W/P1 तक, क्योंकि जैसे ही रियल वेज कम होगी कुछ लोग काम करने को तैयार नहीं होंगे, तो यहाँ पर सिर्फ 100 लोग ही काम करने को तैयार हैं W/P1 वेज रेट के ऊपर, और 100 लोगों को की ही डिमांड है W/P1 वेज रेट के ऊपर। क्योंकि जब वेज रेट कम हुई, सस्ती हो गई लेबर, फर्म ने लेबर की डिमांड बढ़ा दी 50 से 100, एंड कुछ लोग काम करना नहीं चाहते अब, तो सप्लाई लेबर की रह गई 200 से 100। इसलिए ये अपने आप ही सॉल्व हो गया, ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट हो गई, फुल एम्प्लॉयमेंट अपने आप ही आ गई, क्योंकि जो वेज रेट है वो फ्लेक्सिबल है। और अगर हम यहाँ पर देखें, सपोज W/P0, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो लेबर की सप्लाई है वो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, सपोज G पॉइंट। तो लेबर की सप्लाई है 50, इतनी कम वेज रेट के ऊपर सिर्फ 50 लोग काम करने को तैयार हैं, दिस इज द सप्लाई। बट जो लेबर की डिमांड है, लेबर की डिमांड है यहाँ तक, सपोज H पॉइंट तक। तो 200 लोगों की डिमांड है एट दिस वेज रेट, बट काम करने को लोग तैयार हैं सिर्फ 50। तो अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी देखें, अगर किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। तो डिमांड ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे हम कहते हैं ये शॉर्टेज है। यहाँ पे थी सरप्लस, यहाँ पर लेबर की सरप्लस थी, यहाँ पर लेबर की शॉर्टेज है, क्योंकि यहाँ पर लेबर ज़्यादा थी, सप्लाई, डिमांड कम थी। यहाँ पर डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। तो जब शॉर्टेज होएगी तो प्राइस बढ़ जाएगी, तो रियल वेज बढ़ जाएगी। जैसे ही रियल वेज बढ़ेगी, फर्म डिमांड कम कर देगी 200 से 100, और जैसे ही वेज बढ़ेगी तो और लोग काम करने को तैयार हो जाएंगे 50 से 100। इसलिए हमेशा क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग जो इक्विलिब्रियम है वो फुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर ही रहेगा एट दिस पॉइंट NF। और अगर कभी ये ऊपर नीचे हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, तो इसको करेक्ट करने के लिए
गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं है। अपने आप ही जो वेज रेट है वो फ्लेक्सिबल होने की वजह से ऊपर नीचे एडजस्ट हो जाएगी और दोबारा फिर जो फुल एम्प्लॉयमेंट है वो सिचुएशन रिस्टोर हो जाएगी। दिस इज द second point of classical model, flexibility of wages or labor market equilibrium. The third point is the capital market equilibrium. In capital market equilibrium, अब हम कैपिटल किसको बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं हम जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उस मनी को हम कहते हैं कैपिटल। अब आप देखो, इसको समझने की कोशिश करो। सपोज आपके पास हैं 100 रुपये, ये आपके पास मनी है। अभी ये कैपिटल नहीं है, आपके पास सिर्फ 100 रुपये हैं, इसको हम कैपिटल नहीं कह सकते। अब इस 100 रुपये में से आपने 80 रुपये सपोज आप खा पी गए, जिसको हम कहते हैं कंजम्पशन। आपने कंजम्पशन कर ली 80 रुपीज़। तो कंजम्पशन का क्या मतलब है कि आपने इन 80 रुपीज़ को खाया, कंज्यूम किया और ये ख़त्म हो गए। 20 रुपीज़ जो हैं वो आपने कर दिए इन्वेस्ट। तो जब आपने 20 रुपीज़ इन्वेस्ट किए तो ये ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि इन्वेस्ट जब आप करते हो, इन्वेस्ट आप क्यों करते हो? इस इच्छा से इन्वेस्ट करते हो कि ये और ज़्यादा हो जाएंगे, इनमें एडिशन हो जाएगी। इसलिए जो 20 रुपीज़ हैं आपने इस बेस पे ये सोच कर इन्वेस्ट किए कि ये ऐड हो जाएंगे, 20 के 22 बन जाएंगे, 25 बन जाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट हम प्रॉफिट मोटिव के लिए करते हैं। तो जब हम अपनी मनी को ऐसे स्पेंड करें कि मनी ख़त्म हो गई, कंज्यूम कर ली, वो सिंपल एक्सपेंडिचर है। जब हम अपनी मनी को ऐसे स्पेंड करें कि हमें और मनी मिल जाएगी उससे, तो उसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट। एंड दिस 20 रुपीज़ आर द कैपिटल। तो इसको हम कहते हैं कैपिटल। ये हमारी कैपिटल है, ये हमारा एक्सपेंडिचर है। कैपिटल का मतलब है, तो मनी को हम कैपिटल भी बना सकते हैं, मनी को हम खर्चा भी बना सकते हैं। तो जब हम अपनी मनी को ऐसे स्पेंड करें कि हमें और मनी मिलने की उम्मीद हो, उसको हम कहते हैं कैपिटल। तो क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स हैं, इनके अकॉर्डिंग लोग मनी की जो डिमांड करते हैं, कैपिटल की जो डिमांड करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए ही करते हैं। इसलिए हमने यहाँ लिखा डिमांड फॉर कैपिटल इज इन्वेस्टमेंट। और जो लोग सेविंग करते हैं, जैसे हमने पहले देखा कि जो भी लोग सेविंग करेंगे वो सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि लोग सेविंग करके जो पैसा है वो अपने पास कैश नहीं रखेंगे। जैसे क्लासिकल इकोनॉमिक्स की असम्पशन है कि मनी इज अ वेल, मनी हैज़ ओनली वन फंक्शन, दैट इज़ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ये मानते हैं कि जो हमारी मनी है उसको या तो हम कंज्यूम करेंगे या फिर हम उसको सेविंग करके इन्वेस्ट करेंगे, अपने पास कैश नहीं रखेंगे, क्योंकि मनी का ऐसा कोई फंक्शन नहीं है। इसलिए जब हम उसको इन्वेस्ट करेंगे, सपोज हम बैंक में रखेंगे, तो बैंक में जो पैसा आया सेविंग से आया, और यही कैपिटल की सप्लाई है बैंक के पास जो आई। तो बैंक में से अगर लोग पैसा मांग रहे हैं, वो मांग रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। तो जो कैपिटल की डिमांड हो रही है वो हो रही है इन्वेस्टमेंट के लिए। और जो बैंक के पास पैसा आ रहा है, कैपिटल आ रही है, वो आ रही है सेविंग से। तो क्लासिकल के अकॉर्डिंग सेविंग इज द मेन सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ कैपिटल एंड पीपल डिमांड कैपिटल फॉर इन्वेस्टमेंट। अब जो इन्वेस्टमेंट है और जो सेविंग है,
दोनों रेट ऑफ इंटरेस्ट के फंक्शन हैं जैसे इनकी एजम्पशन है, और इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ नेगेटिवली रिलेटेड है। इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो लोग बैंक से कम लोन लेंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर इंटरेस्ट कम होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, तो लोग ज़्यादा लोन लेंगे बैंक से इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और जो सेविंग है या सप्लाई ऑफ कैपिटल, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट का पॉजिटिव फंक्शन है, डायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि अगर बैंक इंटरेस्ट ज़्यादा देगा तो लोग ज़्यादा सेविंग करके बैंक में रखेंगे। एंड ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है, हमेशा आई बराबर एस रहता है क्लासिकल के अकॉर्डिंग, और अगर कभी ये बराबर ना भी हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने आप ही चेंज हो जाता है और अगेन ये बराबर हो जाते हैं आई एंड एस। आई एंड एस को बराबर करने के लिए गवर्नमेंट की कोई इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं है। तो इस डायग्राम को भी हम सिमिलर तरीके से लेबर मार्केट वाले तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसको हम दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। Horizontal axis we are taking capital, vertical axis we are taking rate of interest. Now, investment is negatively related. जो डिमांड फॉर कैपिटल है, जैसे हमने देखा पीपल डिमांड कैपिटल फॉर इन्वेस्टमेंट, जो कि इंटरेस्ट के साथ नेगेटिवली रिलेटेड है। और जो सप्लाई ऑफ कैपिटल है, इसका जो मेन सोर्स है वो है सेविंग, क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग। ये इक्विलिब्रियम है, सपोज E1, और ये हमारा बन गया सेविंग इन्वेस्टमेंट इक्वालिटी। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डिटरमिन हुआ है सपोज R1। तो हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि I equals to S at E1 and R1 rate of interest is determined, और ये हमेशा इक्वल ही रहेंगे। अगर सपोज ये कभी अनइक्वल हो, सपोज यहाँ पर हो, सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट हो R2, अब यहाँ पर जो लेबर की जो कैपिटल की डिमांड है वो है R2A, और जो कैपिटल की सप्लाई है वो है R2B। अब सप्लाई सेविंग ज़्यादा है, कैपिटल की सप्लाई ज़्यादा है, कैपिटल की डिमांड कम है। इट मीन्स बैंक के पास बहुत सारी मनी पड़ी है, पर उसको इन्वेस्ट करने के लिए कोई ले नहीं रहा, बैंक से कोई लोन ले नहीं रहा। तो अगर बैंक से लोन लोग कम लेंगे तो बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर देगा, क्योंकि यहाँ पर बैंक के पास सरप्लस सेविंग्स हैं, तो अपने आप ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा। और अगर सपोज करो यहाँ पर कोई सिचुएशन हो, R0 के ऊपर अगर हम देखें तो बैंक के पास जो सेविंग है वो है सपोज R0G, बट जो लोग डिमांड कर रहे हैं बैंक से इन्वेस्टमेंट करने के लिए मनी, वो डिमांड कर रहे हैं R0H। तो बैंक के पास डिमांड ज़्यादा है, लोग ज़्यादा खड़े हैं लोन लेने के लिए, बट बैंक के पास इतने पैसे नहीं हैं, तो बैंक क्या करेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देगा, क्योंकि यहाँ पर बैंक के पास कैपिटल की शॉर्टेज है। तो बिकॉज ऑफ दिस सरप्लस, बिकॉज ऑफ दिस शॉर्टेज, ऑटोमेटिकली रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंजेस बिकॉज ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट।
रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्लेक्सिबल है, इसलिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अपने आप ही कम ज़्यादा होता रहेगा और इकॉनमी में इक्विलिब्रियम यहाँ पर बना रहेगा। और अगर कभी इनइक्वालिटी आ भी जाए, जैसे यहाँ पर आई, इट विल बी फॉर द शॉर्ट पीरियड। क्लासिकल्स के अकॉर्डिंग लॉन्ग पीरियड में क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये एडजस्टमेंट हो जाएगी, क्योंकि ये जो मार्केट फोर्स है रेट ऑफ इंटरेस्ट, दिस इज नोन एज मार्केट फोर्स। तो ये अपने आप ही डिमांड सप्लाई जैसे मार्केट फोर्सेस हैं, इन्वेस्टमेंट है, सेविंग है, इसको ऑपोजिट फोर्स बोलते हैं। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट को, अगर ये बड़ा होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर देगा, अगर ये बड़ा होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देगा। तो ये जो ऑपोजिट फोर्सेस हैं ये अपने आप ही ऐसे काम करती हैं कि जो स्टेबल इक्विलिब्रियम है यहाँ पर वो बना रहता है। फुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बोल दो या फिर इन्वेस्टमेंट सेविंग इक्वालिटी के ऊपर बोल दो। दिस वाज द थर्ड पॉइंट इन classical model, capital market equilibrium. Fourth point of explanation of classical model, that is the flexibility of prices. ये पॉइंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, समझने वाला है। मेन एप्लीकेशन क्लासिकल की होती है इस पॉइंट के थ्रू। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स, due to full employment, output cannot be increased by raising money supply. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब अगर हम सप्लाई साइड में देखें, ये जो इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कही, क्या होगा देखो, अब मार्केट में जितनी भी मनी सप्लाई है उससे काम चल रहा है। सपोज अब मैं पहले मनी सप्लाई आपको डिफाइन कर दूं कि मनी सप्लाई का क्या मतलब है। मनी सप्लाई का मतलब है कि कितने पैसे फिजिकली जो नोट्स हैं, कॉइन्स हैं, वो कितने हैं। सपोज ये 100 हैं फिजिकली, और दूसरा एक नोट कितनी ट्रांजैक्शन करता है। सपोज करो एक 10 रुपए का नोट है, इससे आपने कोई सपोज पेन ले लिया, तो आपने क्या किया, जो ये आपको और ये पेन सेलर लिख लेते हैं इसको, ये पेन सेलर है, तो आपने इसको 10 रुपये दे दिए ये वाले। तो ये 10 रुपये का नोट जो था, इसने 10 रुपये का ट्रेड कर दिया। अब इस पेन सेलर ने क्या किया, पेन सेलर ने सपोज सब्जी वाले से टोमेटोस ले लिए इस 10 रुपये से, तो इसी 10 रुपये से एक बार और 10 रुपये का ट्रेड हो गया। तो टोमेटो वाले ने क्या किया, टोमेटो वाले ने इस 10 रुपये से अपना सिम रिचार्ज कर लिया, तो इसी 10 रुपये ने एक बार फिर 10 रुपये का ट्रेड कर दिया। मतलब ऐसे आगे आगे ये चलता जाएगा। कब तक, जब तक ये 10 रुपये का नोट घिसता नहीं, फटता नहीं, जब तक इसको बैंक डिस्ट्रॉय नहीं करता। और जितनी बार ये 10 रुपये का नोट आगे आगे लोगों के हाथों में जाएगा, हर बार ये 10 रुपये का नोट 10-10 रुपये जितना ट्रांजैक्शन करता जाएगा। इसको हम कहते हैं वेलोसिटी। सपोज करो इस 10 रुपये के नोट ने 5 टाइम्स ट्रांजैक्शन की, हमने जान के ये कम लगा लिया, वैल्यू छोटी रहे, तो इसका मतलब जो मनी सप्लाई मार्केट में है वो है
दिस इज द सिंबल ऑफ मनी सप्लाई MOV, वो है 500। फिजिकली मार्केट में जो करेंसी है वो है 100 रुपये, 100 रुपये है। बट असल में ये 100 रुपये जो है वो 500 का काम कर देंगे, क्योंकि जो वेलोसिटी है वो 5 है। तो ऐसे बनती है मनी सप्लाई। तो क्लासिकल में ये इम्पोर्टेंट बात है, याद रखने वाली बात है, जो हमने अभी कंक्लूजन निकाला कि सप्लाई ऑफ मनी इज इक्वल्स टू MOV। MOV जो है वो है सप्लाई ऑफ मनी। MOV मीन्स फिजिकल करेंसी, नोट्स, कॉइन्स एटसेट्रा, एंड V इज द वेलोसिटी, कितनी बार वो नोट चलते हैं, दिट इज द सप्लाई ऑफ मनी। तो ऐसे ही अगर हम डिमांड फॉर मनी की बात करें, डिमांड फॉर मनी की बात करें, जैसे अपने पेन की ही बात की, तो पेन की जो प्राइस है वो सपोज है 10 रुपीज़, और आपको जो पेन चाहिए, क्वांटिटी चाहिए पेन की, वो आपको सपोज चाहिए 4 पेन्स, तो आपको कितनी मनी चाहिए? आपको मनी चाहिए 40। सिंपल। प्राइस कमोडिटी की, और कितनी चीज़ आपने ट्रांजैक्शन करनी है, लेनी है, दिस इज द डिमांड फॉर मनी, दैट इज नोन एज PT। तो डिमांड फॉर मनी ये होती है। क्लासिकल के अकॉर्डिंग जो सप्लाई ऑफ मनी है वो है MOV, और जो डिमांड फॉर मनी है वो है PT। वैसे मनी की सप्लाई के बारे में, मनी की डिमांड के बारे में अलग अलग थ्योरीज हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जब हम मनी चैप्टर स्टडी करेंगे तो उस वीडियोस में डिटेल में हम बताएंगे कि मनी की सप्लाई कैसे कैसे डिफाइन करते हैं, और मनी की डिमांड किन पर्पस के लिए, और मनी की डिमांड की लेके क्या क्या थ्योरीज डेवलप हुई हैं, वो हम डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पर हम ये समझ रहे हैं, क्लासिकल थ्योरी समझने के लिए जो क्लासिकल वालों ने दिया कि जो मनी की सप्लाई होती है वो होती है MOV, और जो मनी की डिमांड होती है वो होती है PT। तो हम बात कर रहे थे कि प्रेजेंटली सपोज MOV इक्वल्स टू PT, मतलब जो मनी की डिमांड है वो मनी की सप्लाई, दोनों आपस में बराबर हैं। तो जितनी मनी की सप्लाई है उतनी ही मनी की डिमांड है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि सपोज करो जो टोटल ये मनी की सप्लाई है, MOV PT डाल के अगर हम MOV बनाएं, सपोज ये 1000 है और 1000 ही सपोज मनी की डिमांड है, तो आराम से जो इकॉनमी है वो चल रही है सपोज। तो इसमें हमने जो सेंटेंस पढ़ा, ये इस कंडीशन को हम मान लेते हैं कि ये फुल एम्प्लॉयमेंट के टाइम है, वो रहा है सारा कुछ। जो मनी की सप्लाई है मनी की डिमांड के बराबर है, इकॉनमी में है फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। तो अब क्या हुआ, अब सपोज करो हम मनी सप्लाई को बढ़ा दें, तो जैसे ही हम मनी सप्लाई को बढ़ाएंगे, पीपल विल स्पेंड देयर एंटायर इनकम, लोग अपनी सारी इनकम को खर्च करेंगे, क्योंकि मनी का एक ही फंक्शन है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो जैसे ही मनी सप्लाई बढ़ेगी प्राइसेस बढ़ जाएंगी। तो ये इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन है जो आने वाले वीडियोस में, जैसे मनी चैप्टर के वीडियोस में क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है, उसके वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट समझने के लिए है। तो वहाँ पे फिर आप इसको दोबारा रेफर कर सकते हो आज की वीडियो को। तो हम क्या कह रहे हैं, क्लासिकल की क्या बात है कि अगर सपोज करो सिस्टम ऐसे चल रहा है, फुल एम्प्लॉयमेंट है, सपोज करो
मनी सप्लाई बैंक ने बढ़ा दी, 1200 कर दी बढ़ाकर। तो जैसे ही बैंक मनी सप्लाई को बढ़ाकर 1200 करेगा, उसमें क्या होगा? अब फुल एम्प्लॉयमेंट है, लोगों ने 200 रुपये जो बढ़ाए, तो 200 रुपये की मार्केट में डिमांड, 200 रुपये जितनी चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी। अब चीज़ों की डिमांड जो बढ़ेगी, चीज़ें तो बढ़ नहीं सकती, टी नहीं बढ़ सकता, टी उतना ही रहेगा क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट है। अब और प्रोडक्शन करने के लिए, ज़्यादा चीज़ें पैदा करने के लिए हमें रिसोर्सेज चाहिए, इनपुट्स चाहिए। रिसोर्सेज हमारे पास है नहीं क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट है, तो इसलिए हम चीज़ें और पैदा नहीं कर पाएंगे। बट लोग सारी मनी स्पेंड करेंगे। स्पेंड क्यों करेंगे? क्योंकि मनी का एक ही फंक्शन है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो 1200 रुपये लोग खर्चेंगे, इस 1000 रुपये के ऊपर ही खर्चेंगे, इस इतनी ट्रांजैक्शन के ऊपर ही खर्चेंगे जितनी चीज़ें हैं। तो इट मीन्स क्या हुआ? जो प्राइस है वो बढ़ जाएगी। कैसे? देखो, तो अगर हम प्राइस इनटू क्वांटिटी आउटपुट टोटल एक्सपेंडिचर अगर हम अपना लगाएं, तो पहले एक्सपेंडिचर हम करते थे 1000 रुपये। अब 1000 रुपये की अगर हम डिवीज़न कर लें, सपोज ये था 200, प्राइस मान लो थी 5, तो 1000 रुपये हमारे लग जाते थे। अब आउटपुट तो 200 ही है, क्योंकि हम आउटपुट को बढ़ा नहीं सकते बिकॉज ऑफ द फुल एम्प्लॉयमेंट। बट पैसे हमारे सारे खर्च हो जाएंगे क्योंकि मनी का और कोई फंक्शन नहीं है। अगर 200 रुपये लोगों को आपने ज़्यादा दे दिए तो लोगों ने सारे पैसे खर्च दिए। इट मीन्स सेम आउटपुट ही लोग ले रहे हैं पहले से ज़्यादा खर्चे में, तो रिजल्ट क्या निकला? प्राइस बढ़ गई। इसलिए क्लासिकल बोलते हैं कि जैसे ही हम मनी सप्लाई को बढ़ाएंगे, मनी सप्लाई को बढ़ाने से आउटपुट तो बढ़ेगा नहीं क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट है, तो इससे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट तो और तो बढ़ेगी नहीं। उल्टा क्या होगा? मनी सप्लाई बढ़ने से प्राइसेस बढ़ जाएंगी। तो thus with increase in money supply prices rise proportionately, बल्कि जितने प्रोपोर्शन से आपने मनी सप्लाई को बढ़ाया उतने ही प्रोपोर्शन से जो प्राइस है वो बढ़ जाएगी। ये क्लासिकल थ्योरी वाले कहते हैं। अब इस प्रोपोर्शन का क्या मतलब है ये भी समझो। जैसे हमने मनी सप्लाई बढ़ाई, 1000 से 1200 कर दी, 200 बढ़ाई, तो मनी सप्लाई में अगर हम प्रोपोर्शन देखें कितना हुआ? 200 बढ़ गई बटा 1000 इंटू 100 मीन्स 20% इंक्रीज हो गया। तो प्राइस में अगर हम देखें कितना इंक्रीज हुआ? 1, पहले था 5 इंटू 100, 20% इंक्रीज प्राइस में हो गया। तो ये है प्रोपोर्शनेट इंक्रीज, कि जितनी आपने मनी सप्लाई इंक्रीज की उतने ही प्रोपोर्शन में जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि आउटपुट नहीं बढ़ेगा। तो ये डायरेक्ट रिलेशन है
MOVPT जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जो सप्लाई ऑफ लेबर है, जो डिमांड फॉर लेबर है, एंड जो प्राइस लेवल है वो मनी सप्लाई का डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट रिलेशन है। मनी सप्लाई बढ़ने से प्राइस बढ़ेगी, प्रोपोर्शनेटली बढ़ेगी। जितने परसेंट मनी सप्लाई बढ़ेगी उतने परसेंट ही प्राइस बढ़ेगी। तो इसको हमने इस डायग्राम में भी दिखाया है। इस डायग्राम को बड़ी सिंपल डायग्राम है। जैसे यहाँ पर हम देखें तो ये एम्प्लॉयमेंट का लेवल है। सपोज ये है एग्रीगेट सप्लाई, ये है एग्रीगेट डिमांड, AD1 ये इक्विलिब्रियम है। तो अगर हम मनी सप्लाई बढ़ाएंगे तो डिमांड राइट शिफ्ट हो जाएगी। मनी सप्लाई बढ़ाने से उतनी ही प्राइस बढ़ जाएगी, क्योंकि जो सप्लाई है वो फुली एम्प्लॉयड लेवल पे है, आउटपुट और नहीं बढ़ सकता। तो उतनी ही प्राइस बढ़ जाएगी जितनी डिमांड बढ़ेगी। इसको हम दोबारा बनाकर भी ड्रॉ कर सकते हैं। देखो, इधर हमने लगाई है डिमांड सप्लाई और यू कैन से टोटल आउटपुट इन द इकॉनमी, और ये सपोज है प्राइस लेवल। जो एग्रीगेट सप्लाई है फिक्स, ये एग्रीगेट सप्लाई है एट द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। मतलब यहाँ पर हम और राइट साइड पर नहीं जा सकते, सप्लाई और नहीं बढ़ा सकते, और जितनी सप्लाई है उतनी ही सपोज डिमांड है AD1, एंड दिस इज द पॉइंट E1, और जो प्राइस है P1। तो क्या होगा, जैसे ही हम मनी सप्लाई को बढ़ाएंगे, मनी सप्लाई बढ़ाने से जो एग्रीगेट डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड राइट साइड पर शिफ्ट हो जाएगी। सपोज AD1 से लेकर AD2 हो जाएगी। अब चीज़ों की जो डिमांड है वो हो गई AD2। इसको अगर हम यहाँ पर देखें तो प्राइस P1 है, चीज़ों की डिमांड हो गई यहाँ तक हो गई डिमांड। सपोज N2 लगाएं अगर हम, यहाँ तक डिमांड हो गई। अब आउटपुट सप्लाई जो है वो यहाँ तक बढ़ नहीं सकती, और आगे हम सप्लाई बढ़ा नहीं सकते चीज़ों की, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट है। इसलिए क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगी P1 से P2, E2 पे आ गए हम। तो जो डिमांड है वो बढ़ने से और सप्लाई के ना बढ़ने से प्राइस बढ़ गई। ये यहीं पर रहा, क्योंकि हम इसके राइट जा ही नहीं सकते, सिर्फ प्राइस बढ़ जाएगी। क्योंकि अब सोचो, माइक्रो लेवल पे भी सोचो, अगर डिमांड बढ़ जाए, सप्लाई ना बढ़े, तो प्राइस राइज हो जाएगा। इसलिए जो मनी सप्लाई है, मनी सप्लाई सिर्फ प्राइस को बढ़ा देगा, इन्फ्लेशन हो जाएगी इकॉनमी में। इसलिए जो मनी सप्लाई है उसको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। इट मीन्स गवर्नमेंट की इंटरफियर की ज़रूरत नहीं है मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू और फिस्कल पॉलिसी के थ्रू, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स। दिस वाज द मेन मैथमेटिकल मॉडल ऑफ क्लासिकल थ्योरी, जिसको हमने एक्सप्लेन किया। For simultaneous equilibrium in classical theory, and for the effect of change in technology, effect of change in supply of labor, effect of change in money supply, so for implications of classical theory and criticism of classical theory, you must watch the next part of the video.
Thank you. Thanks for watching this video.